Hello everyone, myself Khushali Kathiria. In this video, we will discuss about the mathematical for algorithm sets. Okay, this one is the topic of your first chapter. Okay, so in this video, we will discuss in what is a sets, what is a matrix. Okay, what is a relation vector. This kind of the topics we will discuss in mathematical for algorithm sets. So you have already learned this kind of the terms in your previous math subject, like first, second, and third maths. You have already done your this kind of the terms in your subject. So here I have briefly discussed about this kind of the topics. Okay, so let's start. First topic is what is a set. Okay, so we can say set is an unordered collection of collected of the objects. Okay, maybe sets contain alphabet or maybe sets contain digits. So this one is the example for the alphabet, set of alphabet and set of digit. Maybe set contain alphabet and digit both in same sets. Okay, maybe here our a set contain only alphabet, b set contain only digits. But if we want to contain alphabet and digits in one set, then it is possible in a set. So member of set are also called of the element of the set. Okay, we can say members, we can say elements, we can say objects, we can say anything to this kind of the alphabet or digits. Okay, so what is a set? Set is an unordered collected, मतलब ऑर्डर में होना जरूरी नहीं है. मे बी आप ए बी सी डी लिखा है तो आप सी डी जेड भी लिख सकते हो, सी डी ए भी लिख सकते हो. जरूरी नहीं है कि 1 to 9 ही लिखा जाए. ओके, मे बी आप 9 से शुरू करके भी लिख सकते हो या तो फिर कोई भी आगे पीछे नंबर लिख सकते हो. ठीक है, ऑर्डर में लिखना जरूरी नहीं है, बट उसके सेट के ऑब्जेक्ट, मेंबर्स, एलिमेंट्स होना जरूरी है. तभी ना तभी उसको क्या कहेंगे? सेट्स कहेंगे. ओके, व्हाट इज अ सेट रिप्रेजेंटेशन मेथड? रिप्रेजेंटेशन मेथड सेट्स की कितनी कितनी है? तो फर्स्ट वन है लिस्टिंग मेथड. लिस्टिंग मेथड दैट मीन्स इफ यू हैव अ बिग सेट. ओके, आपको अगर स्मॉल सेट नहीं बिग सेट को डिस्क्राइब करना है, then listing method is used for the big sets. Okay, here I give one example for the listing method. Okay, the next one is the डिस्क्राइबिंग प्रॉपर्टी. ओके, प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं तब आप एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं. सो सेकंड रिप्रेजेंटेशन इज डिस्क्राइबिंग प्रॉपर्टी. एलिमेंट इन अ सेट डिराइव्ड बाय स्टार्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट. ओके, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी के एलिमेंट को डिस्क्राइब करना है, दैट मीन्स अगर आपको चाहिए कि मुझे 1 to 5, 1 2 3 और 5 का स्क्वायर चाहिए, क्यूब चाहिए. ओके, तो वो क्या होगा? डिस्क्राइबिंग प्रॉपर्टी. ओके, उसका सेट क्या होना चाहिए? सेट ये होना चाहिए 1 to 5 का स्क्वायर चाहिए मुझे. तो यहाँ पर मेरा सेट क्या बना? 1 4 9 69 25. ओके, दिस वन इज द डिस्क्राइबिंग प्रॉपर्टीज. थर्ड वन इज द रिकर्सिव मेथड. Recursive method, that means elements are not defined in term of the recursion. They are not explicitly listed as previous both method. इसमें क्या करता है? जहाँ पर लिस्टिंग मेथड में और डिस्क्राइबिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है? पर्टिकुलर डिजिट डिस्क्राइब होता है, मतलब सेट्स में पर्टिकुलर डिजिट दिया गया होता है, जबकि रिकर्जन मेथड में पर्टिकुलर डिजिट नहीं दिए गए होते हैं. उसमें क्या? उसमें एक टर्म्स लिखी होती है, लाइक दैट. ओके, हमें क्या चाहिए? हमारी रिक्वायरमेंट सेट्स ऑफ फर्स्ट 10 नंबर. ओके, अगर हमें लिस्टिंग मेथड या तो फिर डिस्क्राइबिंग प्रॉपर्टी के मदद से अगर हम उसको लिस्ट आउट करेंगे तो उसका सेट क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ओके, बट हम रिकर्सिव मेथड से करेंगे तो उसका क्या बनेगा? C slash C less than or equal to 10, where C belongs to from the n number, natural number. Okay, so this one is the recursion method for the, these three method are represent a set. Okay, second one is the types of set. We have multiple types of set. You have already learned in your first and second math, but we discuss it briefly. Subset, superset, proper subset, proper superset, empty set, power set and equal set. So let's one by one discuss. First one is a subset. Subset, that means A is a subset of B. Okay, अब इसको मुझे अगर कोई लैंग्वेज में उसको आइडेंटिफाई करना है, दैट मीन्स सिंबल में अगर मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है. ए क्या है?
ए है 1 2 3 4 एंड 5, ओके, और बी क्या है 1 3 एंड 5, ओके। अब मुझे क्या करना है, सबसेट बोलना है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बी के सारे एलिमेंट है वो ए के अंदर आते हैं। यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर बी आएगा और यहाँ पर ए आएगा, ठीक है। तो सारे के सारे एलिमेंट है जो बी के वो ए के अंदर आते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ओके, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ओके। जो हमारे मैथमेटिकल टर्म है उसको हम कैसे रीड करेंगे, पीछे से, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ओके। अगर हम ऐसे बोलेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन इट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जो हमारा मेन है वो सबसेट किसका है, बी का है, ओके। सो दिस वन इज कॉल्ड बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ओके। और जो सेट है, ए सेट है और बी सेट है, वो इटसेल्फ भी उस अपने सबसेट हो गए, ओके। तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए एंड बी इज अ सबसेट ऑफ बी, वो अपने ही आपके सबसेट हो गए। क्यों? क्योंकि ए के अंदर सारे के सारे एलिमेंट आते हैं। अगर कोई दूसरा ए लेते हैं उसमें भी सारे के सारे एलिमेंट ए के ही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ ए, ए इज अ सबसेट ऑफ ए एंड बी इज अ सबसेट ऑफ बी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा कैरेक्टर है, जो हमारा सेट है, उसमें अगर दोनों की वैल्यू कॉमन है, ओके, और इटसेल्फ, हम क्या बोल सकते हैं उसे, इटसेल्फ वो एक दूसरे के सबसेट है। एवरी सेट इज अ सबसेट इटसेल्फ, ओके। वैसे ही सुपरसेट, सुपरसेट में क्या है, हमें उसकी इनवर्स साइन यूज करनी है। अगर हम इनवर्स साइन यूज कर रहे हैं देन हमारा जो दोनों सेट है ए और बी उसको भी क्या करना होगा, स्वैप करना होगा, ओके। So this one is the inverse method of superset, is the inverse method of subset. And what is the empty set? Empty set that means blank set. उसमें दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है। Proper subset. Proper subset that means कि A की वैल्यू है 1 3 एंड 5, B की वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 5 और C की वैल्यू है 2 एंड 8, ओके। A is a proper subset of B. क्यों? क्योंकि ए की सारी वैल्यू है वो उसके अंदर आ जाती है, बट सी इज अ नॉट सबसेट ऑफ बी, ओके। बट सी की एक ही वैल्यू आ रही है तो हम क्या बोल सकते हैं, वो सबसेट नहीं है। अगर उसका वो सबसेट है तो उसको क्या हम बोल सकते हैं, प्रॉपर सबसेट। सारे के सारे अगर आ जा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं प्रॉपर सबसेट। अगर नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, वो प्रॉपर सबसेट नहीं है, ओके। प्रॉपर सबसेट इज द इनवर्स वर्जन ऑफ द प्रॉपर सबसेट, ओके। आफ्टर दैट पावर सेट, पावर सेट दैट मीन्स कि आपकी जो एलिमेंट्स है, कलेक्शन है, वो उसमें एलिमेंट के ऑल पॉसिबल सबसेट क्या है, ओके। अगर हमारा सबसेट ये वाला ए हमारा सबसेट है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, ओके, ये मैंने लिख दिया, A इज इक्वल टू ए बी सी। अब पावर सेट क्या करता है, पावर सेट चेक करता है ऑल पॉसिबल कलेक्शन, ओके। ए के साथ क्या है, ए के साथ बी, ए के साथ सी, ओके। अकेला ए, अकेला बी और अकेला सी, बी के साथ सी और ए बी सी, दिस वन इज द पावर सेट, ओके। और एक ब्लैंक आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो पावर सेट क्या होगा, आपको ऑल कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, ए के साथ बी के, ए के साथ सी के और बी के साथ सी के, और ए बी सी इटसेल्फ तो होगा ही होगा और ब्लैंक होगा, ठीक है। और अपने आप के भी वो सेट बनेंगे, ओके। एंड दिस कॉल्ड इज अ इक्वल सेट। इक्वल सेट दैट मीन्स ए और बी दोनों सेम है तो उसको कहेंगे इक्वल सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, सेट के ऊपर ऑपरेशन करना है तो कौन कौन से ऑपरेशन है, देन फर्स्ट वन इज द यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन दैट मीन्स कॉमन जो है, हमको क्या करना है, हम दोनों को कॉमन जो है उसको एक ही बार लिखना है और सारे सेट को क्या कर देना है, सम कर देना है, ओके। तो ए यूनियन बी दैट मीन्स 1 2 3 तो आएगा ही आएगा, जो रिपीट होता है उसको क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है दूसरे सेट में से, और जो नहीं आ रहा है उसको क्या करना है, लिखना है, ओके। सेकेंड वन इज द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन दैट मीन्स उन दोनों में से कॉमन जो होगा वो, तो ए और बी दोनों में से कॉमन कौन है, 2, सो दिस वन इज द इंटरसेक्शन। थर्ड वन इज द डिफरेंस। डिफरेंस दैट मीन्स ए माइनस बी। ए में से बी को अगर माइनस करते हैं तो कौन सा सेट बचता है, और 2 और 3 को माइनस कर दिया तो 2 3 निकल गया, तो ए इटसेल्फ बचेगा। तो ए कंटेन 1 2 3,
B कंटेन 2 3 4 ओके। अब A में से B को माइनस करते हैं तो हमारा क्या बचा 1 ओके। अब हम B में से अगर यहाँ पर हम B में से A को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2 3 4 में से 1 2 3 को बात करना है माइनस करना है तो हमारा क्या आंसर आएगा 4 ओके। एंड द लास्ट वन इज द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स A dash is equal to union minus A ओके। सपोज कि हमारा यूनियन है U ओके सॉरी यूनियन नहीं U जो यूनिवर्स है यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5 6 7 एंड A हमारा है 2 3 और 4 ओके। तो हमारा A डैश क्या होगा A डैश होगा ये वाले जो कैरेक्टर है ना उसको यहाँ पर से रिमूव करना है और बाकी के कैरेक्टर को आपको क्या करना है A डैश मान लेना है। मतलब क्या कि यूनियन 1 2 3 4 5 6 7 में से 2 3 4 को क्या कर देना है निकाल देना है तो आपका A डैश क्या मिला 1 5 6 एंड 7 दिस वन इज द कॉम्प्लीमेंट ओके। Cartesian product okay this one is the cross product we can say like that A cross B okay। A cross B सपोज कि हमारा A सेट है और A और B का है और B सेट है 0 1 2 का है तो अब हमें क्या करना है इन दोनों के पॉसिबल कनेक्शन सॉरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें करना है A के A विथ 0 A विथ 1 A विथ 2 ओके A विथ 0 A विथ 1 A1 A2 ओके B with 0 B with 1 and B with 2 B0 B1 and B2 this one is the A cross okay। and what is a tuple tuple is the order pair of elements in is called a tuple okay। यहाँ पर 3 टपल है तो 3 ऑर्डर 3 टपल के करवाएंगे 5 टपल होगा तो 5 7 होता 7 6 होगा तो 6 टपल्स ओके। we can say like n tuples then this one is a 1 2 3 up to n so this one is the n tuple okay। now operation sets cardinality on set that means 1 to 1 1 to many many to 1 many to many this one is a very important topic okay। this one this topic cardinality of set is contained also belongs in cardinality of function okay। यहाँ पर मैंने sets use किया है ना तो cardinality of function भी आएगा तो सेम यही है 1 to 1 1 to many many to 1 and many to many। so what is a 1 to 1 1 to 1 that means कोई एक सेट होगा कोई दूसरा सेट होगा उसके साथ 1 to 1 का रिलेशन कोई एक सेट है वो कोई सेट मेंबर है कोई एक सेट मेंबर है कोई एक सेट मेंबर के साथ ही कॉम्बिनेशन बनाएगा so this one is the 1 to 1 but अगर हमें 1 to many okay 1 to many okay कोई एक सेट है कोई एक सेट का एलिमेंट है वो दूसरे सेट के मल्टीपल एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा तो उसे क्या करेंगे कहेंगे हम 1 to many okay। same many to 1 okay many to 1 that means एक सॉरी कोई एक सेट है ओके हमारा कोई एक सेट है उसके मल्टीपल एलिमेंट है कोई एक एलिमेंट सामने वाले एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाता है तो दिस कॉल्ड मैनी टू 1 ओके। एंड मैनी टू मैनी दैट मीन्स ए सेट में भी मल्टीपल है बी सेट में भी मल्टीपल है दोनों सेट्स के मेंबर कोई किसी के भी साथ रिलेशन बना सकते हैं दैट मीन्स मैनी टू मैनी ओके। so this one is the very basic concept of the set। in next video we will discuss the function and relation as well as vector and matrix okay। so let's continue in our next chapter। thank you।